حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت انوش، انوش کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے محلیل، محلیل کے بیٹے یارد، یارد کے بیٹے حضرت ادریس علیہ السلام، یہ بھی نبی، اور حضرت ادریس بھی نبی آ گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے متوشلق، ان کے بیٹے حضرت لامک، اور لامک کے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفخشد، ارفخشد کے بیٹے حضرت ہود علیہ السلام، یہ بھی نبی گزرے۔ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، ان کے بیٹے ارفخشد، ارفخشد کے بیٹے ہود علیہ السلام، ان کے بیٹے فالخ، فالخ کے بیٹے ارغو، ارغو کے بیٹے سروج، سروج کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے تارخ، اور تارخ کے بیٹے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ٹھیک ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے ارام، ارام کے بیٹے ابز سمر، ابز سمر کے بیٹے مزی، مزی کے بیٹے شمعی، شمعی کے بیٹے زارے، زارے کے بیٹے ناحس، ناحس کے بیٹے مقسی، مقسی کے بیٹے ابہام، ابہام کے بیٹے اکناد، اکناد کے بیٹے ایفی، ایفی کے بیٹے اراوے، اراوے کے بیٹے یلہن، یلہن کے بیٹے یحزن۔ اچھا، اراوے، اراوے کے بیٹے یلہن، یلہن کے بیٹے یازن، یازن کے بیٹے یسربی، یسربی کے بیٹے حمدان، حمدان کے بیٹے دعا، دعا کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے ابکر، ابکر، ابکر کے بیٹے ایفی، ماخی، نامش، جاہم، تانج، تدلاف، بلداس، حزہ، ناشد، عوام، یوسیابور، ہمیسا، ادب۔ اب آگئے حضرت عدنان، حضرت عدنان کے بیٹے جی ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، اور ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب، حضرت مطلب کے بیٹے جناب عبداللہ، اور جناب عبداللہ کے بیٹے خاتم الرسول تاجدار مدینہ۔ یہ وہ شجرہ ہے جو سید سلیمان منصور پوری نے رحمت للعالمین کتاب کے اندر لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں حضور کی ولادت سے پہلے آپ کے دادا جی سے آپ ذکر شروع کرتے ہیں، کن سے؟ حضرت عبد المطلب سے۔ جناب سیدنا حضرت عبد المطلب، آپ کی 5 شادیاں ہیں۔ کتنی جی؟ 5 شادیاں۔ ایک مرتبہ آپ ملک شام گئے تجارت کے لیے، وہاں کے ایک کاہن نے کیافہ شناس، کیافہ شناس کہتے ہیں جو باڈی وغیرہ دیکھ کر مستقبل کے حالات بتا دیتا ہے، تو اس نے آپ کو دیکھا اور دیکھ کے کہا عبد المطلب میں کیا آپ کی باڈی چیک کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جن چیزوں کو دیکھنا منع ہے ان کو نہ دیکھنا، باقی چیک کر سکتے ہو۔ اس نے آپ کے دونوں نتھنے دیکھے، نام پوچھا، قبیلہ پوچھا اور علاقہ پوچھا، اور وہ کہنے لگا کہ آپ کی نسل میں اللہ نے نبوت بھی رکھ دی ہے، بادشاہت بھی رکھ دی ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ نبوت تب آئے گی آگے جب آپ اپنی شادی بنو زہرہ خاندان میں کریں گے۔ تو حضرت عبد المطلب نے شادی بنو زہرہ برادری میں کی، اور بنو زہرہ کی فاطمہ نامی خاتون سے۔ کس سے جی؟ فاطمہ نامی، فاطمہ خاتون سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، یہ یاد رکھنا۔ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ کا ایک لقب ہے ذبیح اللہ۔ کیا لقب ہے جی؟ ذبیح اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے راستے میں ذبح ہونے کے لیے پیش ہونے والا۔
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अनबनु ज़बीहैन, अनबनु ज़बीहैन, मैं दो ज़बा होने वालों का बेटा हूं, जिन्होंने अपने आप को ज़बा के लिए पेश किया अल्लाह के रास्ते में, वो दो शख्सियात का मैं बेटा हूं। एक तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है और दूसरे जनाबे अब्दुल्ला है। इनकी कुर्बानी का वाकया क्या है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की अभी शादी नहीं हुई, इधर सिर्फ एक बीवी थी जिनसे उनके बड़े बेटे जुबैर पैदा हुए थे। आप सोए हुए थे कि ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर क्या देखा, ख्वाब से पहले समझ लीजिए, आपको याद होगा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास की वजह से कौन सा कुआं निकला, ज़मज़म। यह ज़मज़म जो था कई सदियों तक बंद हो गया था, खत्म, निशान तक मिट गया था कि ज़मज़म किधर है। आपस की कुरैशियों की नाचाकियों की वजह से खत्म हो गया इसका निशान। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोए हुए थे तो ख्वाब में क्या देखा, ख्वाब में ऑर्डर होता है कि बर्रा खोद, दूसरी रात ख्वाब आई तैबा खोद, चौथी रात ख्वाब आई मदनूना खोद। समझ ना आई, आपने कुरैशियों को इकट्ठा किया कि मुझे 3 रातें ये ख्वाब आ रही है, बर्रा खोदो, तैबा खोदो, मदनूना खोदो, खास चीज खोदो, पाक चीज खोदो, अपने बाप दादा की विरासत को खोदो। उन्होंने कहा कि आइंदा अगर ख्वाब आए तो ख्वाब में पूछ लेना कि क्या खोदना है। चौथी रात आपको ख्वाब आई तो ख्वाब में पूछते हैं मैंने क्या खोदना है, तो कहा गया कि ज़मज़म खोदो जो तुम्हारे बाप दादा की विरासत है। तो ख्वाब में पूछा ऐना हिया, वो है काम है, मुझे पता ही नहीं, वो तो सदियों से बंद हुआ है। तो कहा गया कि ज़मज़म जब तुम सुबह तलाश करोगे 3 निशानियां तुम्हें बताई जा रही हैं। नंबर 1, वहां चूंटियों की कसरत होगी। किस चीज की? वहां चूंटियों के बिल वगैरह होंगे, सुराख होंगे, चूंटियां चूंटियां होंगी। नंबर 2, वहां गोबर भी होगा, खून भी होगा। नंबर 3, और एक कव्वा होगा जो सफेद सीने वाला, उसका सीना सफेद होगा, वो वहां गोबर और खून के दरमियान होगा। आप सुबह हो गए तलाश करते करते जिस जगह आज ज़मज़म में वहां पहुंचे तो चूंटियों की कसरत नजर आई, लेकिन बाकी 2 निशानियां तो थी नहीं। आप वहीं खड़े हो गए, देखा क्या कि थोड़ी दूर कुछ लोग गाय ज़बा करने की कोशिश कर रहे हैं। गाय उनके हाथ से छूटी और वो पीछे दौड़े, जहां आप खड़े थे वहां आके गाय गिर गई। अब यही उन्होंने ज़बा कर दिया। जब गाय ज़बा हो जाए, अच्छी चीजें, खाल गोश्त हर चीज ले जाए, वहां रहता क्या है। और थोड़ी देर बाद एक कव्वा भी आ गया जो उस गोबर और खून को वहां जो छिचड़े वगैरह थे खाने लगा। आपने वहां निशानी लगाई, अपने बेटे जुबैर को साथ लिया और खोदना शुरू कर दिया। जब खोदा ना ज़मज़म निकल आया पानी, तो कुरैशियों ने झगड़ा कर दिया। उन्होंने कहा ये मत समझना कि ये ज़मज़म तूने खोदा है, लिहाजा तू अकेला ही मालिक है, ये हमारे बाप दादा की विरासत है, लिहाजा हम भी इसके बराबर के। आपने फरमाया वो तो सदियों से बंद हुआ है, या तो जारी रहता तो हुक्म और होता, अब मैंने मेहनत की है तो लिहाजा मालिक भी मैं हूं। झगड़ पड़े। आखिर इन कुरैशियों ने ताना दिया, ताना ये दिया तेरा एक बेटा है, तू मर गया, हम इसे भी मार डालेंगे, फिर कुआं किसका होगा। इतना झगड़ा बढ़ाया खानदान वालों ने। उसी ज़मज़म के अंदर हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने एक मन्नत मानी, अल्लाह मुझे 10 बेटे दे और 10 के 10 जवान हो जाएं, फिर मैं एक बेटा तेरे रास्ते में ज़बा कर दूंगा। मन्नत मान ली। अब यहां कुरैशियों ने कहा कि अब झगड़ा जो है ये निपटाया जाए, पर मैं कोई बात नहीं, जिस बंदे की मर्जी पे ये केस ले जाओ, जो फैसला करे मैं मंजूर है। आखिर मुकमका ये हुआ कि मुल्क शाम में एक आलिम रहता है, उसके पास ये झगड़ा ले जाया जाए। उस वक्त लोग किन के पास लेकर जाते थे? राहिबों के पास, मशाइख के पास, जिस तरह आजकल भी होता है। रास्ते में आपको पता है सहराई सफर हो तो लोग पानी भी साथ ले जाते हैं, सत्तू भी साथ ले जाते हैं, खाने पीने की चीजें, और रास्ता देखते हैं सितारों को देख देख कर, और भूल जाए तो फिर बंदा कहीं से कहीं निकल जाता है, पानी खत्म हो जाए तो बंदा मर जाता है। खुदा की कुदरत के जनाब अब्दुल मुत्तलिब के लश्कर का पानी खत्म हो गया। अब इन्होंने पानी मांगा दूसरी पार्टी से, उन्होंने पानी देने की बजाय इनकार कर दिया, ये तो फुट्टा खाओ तुसी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पूरे कबीले को इकट्ठा करके बनु हाशिम को पूरे को कहा, अब इस तरह करते हैं, मौत तो है, यकीनी मर जाना है, अपनी अपनी कब्रें खोद लें, जो मरता जाए साथ वाले दफन करते जाए। सारी कब्रें खोदी गई, कब्रों के अंदर बैठ गए कि आखिर में एक लाश ही रह जाएगी ना, अगर इनको तरस आ गया तो दफन कर देंगे, वरना गिद्धे और गिद्दड़ जानवर खा जाएंगे, लाशें बर्बाद हो जाएंगी। जब ये इंतजार कर रहे थे, अचानक जनाब अब्दुल मुत्तलिब फिर खड़े हो गए।
कहने लगे यूं अपनी कब्रें खोद के बैठना और मौत का इंतजार करना ये बुज़दिलों की निशानी है, हम आखिरी दम तक मुकाबला करेंगे। आपने ऊंट को एड़ लगाई, उठ। जैसे ही ऊंट उठा नीचे से चश्मा जारी हो गया। जब चश्मा जारी हुआ बड़े खुश हुए, चश्मा पानी भरा, उनको भी बुलाया, वो जो साथ वाला दुश्मन कबीला था उनको भी बुला लिया, भी तुम भी भर लो, मुश्किलें भर लो। उन्होंने मुश्किलें भर ली। फिर मैं आगे, उन्होंने कहा आप आगे नहीं जाएंगे, आप पीछे जाएंगे। मैं क्यों? उन्होंने कहा कि जिस खुदा ने तुझे सहरा में ये चश्मा दिया है उसी ने जमजम का मालिक भी तुझे बनाया। कल्ला वल्ला ला नुखासिमुका फी जमजम अबदा, अब हम आपसे कभी जमजम का झगड़ा नहीं करेंगे। वापिस आ गए। वो जो मन्नत क्या मानी थी कि अल्लाह मुझे क्या दे भाई, अल्लाह ताला ने इनको बेटे दिए। जनाब सैयदा फातिमा जो बीवी थी उनसे हजरत अब्दुल्ला पैदा हो गए। हजरत अब्दुल्ला भी जवान हो गए, सारे भी जवान हो गए। कुल 13 बेटे हैं आपके। कितने? ये 10 जवान हुए ना, सोए थे, ख्वाब आई अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी कर, पकड़ी तो बकरी कर दी। दूसरी रात ख्वाब आई कुर्बानी कर, गाय कर दी। तीसरी रात ख्वाब आई कुर्बानी कर, ऊंट कर दिया। कहा ये कुर्बानी नहीं, वो मन्नत वाली कुर्बानी कर। अब सोच में पड़ गया कि इन 10 में कौन तैयार होगा। जब बेटों ने देखा तो बेटे सारे के सारे बोले, 10 बेटे जवान, उन्होंने कहा बाजी आप मन्नत को पूरा करें, हम में से जिसका दिल करता है आप छुरी फेरें कुर्बान करो। तो उन्होंने हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चले मैं कुर्रा अंदाजी करता हूं। कुर्रा अंदाजी की तो जनाब अब्दुल्ला का नाम निकल आया। तो वो 9 के 9 आड़े आ गए। अभी तो अब्दुल्ला की शादी भी नहीं हुई, अब्बा जी इसने तो जिंदगी की बहारें नहीं देखी, हमने तो सारा कुछ देख लिया, हमें ज़बा करें। उधर कुरैश भी सारे आ गए, नहीं अब्दुल्ला को ज़बा नहीं करना, ना किसी और को करना है, कोई और रास्ता तलाश किया जाए। अब रास्ता क्या तलाश करना? उन्होंने कहा मैंने तो मन्नत पूरी कर रही है। जनाब अब्दुल्ला भी तैयार, जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी तैयार है, लेकिन आड़े आ गए 9 भाई और कुरैशी सारे। इन्होंने कहा कि इस तरह करते हैं कि खैबर में एक औरत है आलिमा, उससे मसला जाके पूछ लेते हैं, वो ऐसा मसला बताएगी कि खुदा को राजी कर रहे हैं ना, खुदा भी राजी हो जाएगा, मन्नत भी पूरी हो जाएगी। कहा चलो जाओ पूछो। अब कुरैशी सारे और वो 9 भाई आए, मसला जब इस आलिमा के आगे रखा तो इसने कहा तुम्हारे इलाके में इंसानी जान की कीमत कितनी है कि अगर कोई बंदा कत्ल हो जाए, मकतूल खानदान से कातिल खानदान की सुलह हो तो कितनी कीमत देके सुलह हो जाती है? आजकल भी ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलिए भाई। उन्होंने कहा जी 10 ऊंट। कितने ऊंट? 10 ऊंट दे दे तो क्या हो जाती है? सुलह। उन्होंने, इस आलिमा ने कहा आप वापस जाओ और जाके जनाबे अब्दुल्ला की भी पर्ची रख लेना, 10 ऊंटों की भी पर्ची रख देना। उसके बाद किसी बच्चे वगैरह को बुला के पर्ची उठा लो। अगर तो निकल आए 10 ऊंटों की पर्ची तो समझ लेना अल्लाह अब्दुल्ला की बजाय अब ऊंटों की कुर्बानी पे क्या हो गया। अगर ना निकले और निकले अब्दुल्ला की तो 10 ऊंट और बढ़ा देना। कितने ऊंट हो गए? 20। अब पर्ची उठाना, अगर पर्ची आ गई ऊंटों की तो समझ लेना अल्लाह 20 ऊंटों की कुर्बानी पे राजी। अभी हुजूर आए नहीं है, ये अबाव अजदाद का जिक्र चल रहा है। अब अगर अब्दुल्ला का नाम निकल आए तो 10 और बढ़ा देना, 30 कर देना। इस तरह बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। जब ऊंटों का जिक्र आ जाए समझ लेना कि इतने ऊंटों की कुर्बानी पे रब क्या हो गया जी? राजी हो गया। बस यही उन्होंने कुर्रा अंदाजी की तो 10 से बढ़ते बढ़ते 100 ऊंटों तक मामला चला गया। कितने ऊंट? 100 ऊंट। 200 ऊंटों की जब पर्ची निकली ना, जनाबे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे ये बाई चांस हो सकता है, दोबारा करो। दोबारा की गई, फिर ऊंटों की, कब फिर तीसरी बार करो। जब तीसरी बार की गई, 3 दफा ऊंटों का जिक्र आया। कितने ऊंटों का? अब 100 ऊंट ज़बा किए गए मक्का मुकरमा में हजरत अब्दुल्ला का सदका, और पूरा मक्का खा रहे, इर्द गिर्द के कस्बात खा रहे हैं। और हजरत अब्दुल्ला जब गली बाजार से गुजरते थे लोग कहते थे ये वो हैं जिनका हम सदका खा रहे हैं, 100 ऊंट। उसके बाद अल्लाह ताला ने शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक इंसान की कीमत कितने ऊंट कर दी है? 100 ऊंट कर दी है, 10 नहीं की। अब भी अगर कोई बंदा कत्ल हो जाए, कातल पार्टी सुलह करना चाहे तो कितने ऊंट देगी? 100 ऊंट देगी या 100 ऊंटों की कीमत देगी? हजरत जनाबे अब्दुल्ला। अब तवज्जो कीजिए, जनाबे अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु की शोहरत बहुत हो गई, जवानी भी, खूबसूरती भी, नूरानियत मुस्तफ़ा से पेशानी भी चमक रही है, किरदार, अखलाक, और इसके अलावा आपकी कुर्बानी का वाकया। एक औरत शाम से चली, शाम से चलती है, उसका नाम है फातिमा।
तौरात और इंजील की वो हाफिजा है, आलिमा है। हजरत जनाब अब्दुल्ला को उसने ऑफर की कि आप मुझसे निकाह कर लें, आप मुझसे। आपने फरमाया मैं अपने अब्बा जी से पूछूंगा, अगर अब्बा जी राजी हैं तो ठीक है। तो कहने लगी आप इस तरह कर लें कि चले निकाह ना करें, मुझसे एक बार मुलाकात कर लें, मैं आपको 100 ऊंट दूंगी। जनाब अब्दुल्ला जलाल में आए और मैं इससे बेहतर है मर जाना, इससे बेहतर है मर जाना, आप आगे तशरीफ ले गए। बाद में जनाब अब्दुल्ला की जब सैयदा आमीना पाक से शादी हुई तो आपने वो 2-3 दिन के बाद जिक्र किया अपने अब्बा जी जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कि एक औरत मुझे शादी की दावत देती है और अरबों में रवाज है कसरत से शादियां करने। उन्होंने कहा बेटे करो। आप जब फिर वो मक्का हरम के उस बाजार में आए जहां ये औरत अपना खैमा लगा के बैठी थी, तो आपने फरमाया बीबी अब्बा जी ने इजाजत दे दी है, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। उसने यूं देखा जनाब अब्दुल्ला की तरफ तो कहने लगी अब मुझे ख्वाहिश नहीं। परसों तो मुझे कुछ और दावत दे रही थी, अब ख्वाहिश नहीं है निकाह की। तो वो कहने लगी कि जो नूर तेरी पेशानी में चमकता था, क्या तेरी शादी हो चुकी है? कहा हो गई है। फरमाया अब उस खातून के अंदर वो चला गया। मैं चाहती थी कि मैं उस नूर की वालिदा बनती, मैं उस नूर की क्या बनती? वालिदा बनती। वो जिसके नूर से तेरी चमकती थी ये पेशानी, उसी की थी मैं तालिब और उसी की थी मैं दीवानी, मगर मैं रह गई महरूम, किस्मत मेरी फूटी है, सुना है वो किस्मत आमीना प्यारी ने लूटी है। वो नेमत सैयदा आमीना की। हजरत सैयदा आमीना कहां की रहने वाली थी? ये मदीना वाले हुजूर के नानके हैं, सुभान अल्लाह फरमाए। ये ननहाल हैं, ये हुजूर के क्या है? ननहाल हैं। जनाबे सैयदा कहां की रहने वाली थी? और सैयदा आमीना भी बनु जोहरा से हैं और हजरत अब्दुल्ला की वालिदा भी बनु जोहरा से हैं। ठीक हो गया। अब यहां मदीना मुनव्वरा में एक खातून आई जो काहिना थी, उसने ऐलान किया कि अपनी अपनी बच्चियों को मुस्तकबिल के हालात के लिए मेरे सामने लाओ, मैं बताती हूँ कि किसके साथ क्या होने वाला है। लोग ले जाते थे, वो हर लड़की के बाद तेरे साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, दूसरी लड़की तेरे साथ ऐसा हो। जब सैयदा आमीना तैयबा ताहिरा तशरीफ लाई तो जब उसने देखा वो हैरान और हक्की बक्की होगी। उसके अल्फाज क्या थे? या तू नबी है या नबी की मां है, या तू नबी है या नबी की मां है। तो चूंकि नबूवत औरत में नहीं होती, नबूवत के लिए ज़कूरियत जो है वो शर्त है मर्द होना। अच्छा, इनके वालिदे गिरामी हैं हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ। वो औरत कहने लगी कि ये खातून यानी आमीना बेटी नबी की मां तब बनेगी जब इसकी शादी कुरैश खानदान के किसी शाख से की जाए। इन्होंने इशारा उधर किया। अब चूंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब से तो पहले रिश्तेदारी थी और उन्हीं से जनाब अब्दुल्ला पैदा हुए, तो अब शादियों में आना जाना तो था। अब इनका फट जो जेन गया हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटा अब्दुल्ला जवान हो गया, चलो रिश्ते के लिए चलते हैं। अब ये मदीना मुनव्वरा से मक्के की तरफ, और इधर जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को एक और काहिन ने कहा कि नबूवत तुम्हारी औलाद में है, लेकिन अगर उस बच्चे की शादी बनु जोहरा बरादरी की खातून से की जाए। अब इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी सोचा, अब इन्होंने सोचा तो निगाह पड़ी सैयदा आमीना पर। अब ये किताबों में नहीं मिलता कि इकट्ठे कहां हुए और रिश्ता कहां हुआ। बहरहाल इधर से हजरत वहाब चल पड़े मक्का मुकरमा। इधर से जनाबे अब्दुल्ला जो थे, जनाबे अब्दुल्ला, इनको कत्ल करने के लिए कितने यहूदी? 70 यहूदी आए थे कि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा कि यह जमाना है आखिरी नबी के बाप का। वो कत्ल के लिए आ गए। ये बड़ा किस्सा तवील है। बहरहाल हजरत अब्दुल्ला शिकार के लिए गए तो इन्होंने घेर घार लिया। हजरत वहाब भी वहां पहुंच गए तो देखा एक नौजवान है और इर्द गिर्द कातिल हैं, तो ये दौड़े मदद के लिए, चीखो पुकार के लिए, लेकिन रास्ते में ठोकर लगी और वो बेहोश हो गए। अब जब होश आई तो क्या देखा? 70 के 70 कत्ल हो चुके हैं और जवान हाशमी जो है वो अकेला खड़ा है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कतार दर कतार फरिश्तों की जो है वो उतर रही है। बहरहाल अब इन्होंने पूछा क्या नाम है, जाना पहचाना, अब रिश्ता हो गया जनाब सैयदा आमीना का जनाब अब्दुल्ला से, और ये नबी पाक जाने दो आलम सल्लम के अबाओ अजदाद बने। अल्लाह ताला ने, अब ये फातिमा नामी खातून है, पढ़ी लिखी है, तौरात जानती है, इंजील जानती है। जनाब सैयदा आमीना कुछ नहीं जानती। ये बात याद रखें। महज एक तौहीद और वो जो तसव्वुर था रिसालत वाला, बस वो दीन इब्राहिम पर थी। ये किताब नहीं जानती, कोई किताब नहीं जानती, ये सारी किताबें जानती है। सवाल ये है
پڑھی لکھی ماں ہونا یہ زیادہ شان ہے کہ پڑھی لکھی نہ ہونا یہ زیادہ شان ہے؟ بولیے بھائی. تو کیوں اللہ رب العالمین نے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، فاطمہ کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر حضور کی ماں بنتی فاطمہ، عیسائی اور یہودیوں کا یہ طعنہ بنتا تمہارے نبی نے نبوت کا سارا کام اپنی ماں سے سیکھا ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبوت والا کام یہ جی اس طرح ہوتا ہے، نبی یوں ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا النبی الامی، یہ بے پڑھا ہوا نبی مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھا ہوا، اور تمہیں ہر شے کی خبریں بتا رہا ہے، یہ خالق سے ہی پڑھا ہوا ہے. تو جناب عبداللہ سادہ پڑھے ہوئے تھے، نیک سیرت تھے. جناب سیدہ آمنہ بھی سادہ پڑھی ہوئی تھی اور نیک سیرت تھی. انتخاب جناب آمنہ کا بھی ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ یہاں تک ہم پہنچ گئے. انشاءاللہ کل سے ہم ذکر کریں گے ولادت سے.